গুড মর্নিং এভরিওয়ান। তো দেখতেই পাচ্ছ সকাল সকাল রেডি হয়ে গেছি, রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি। আর কাল রাতে না প্রচণ্ড টায়ার্ড ছিলাম, কোনো রকমের স্নানটা করে ডিনার করেই শুয়ে পড়েছি, যেহেতু আজকে সকাল সকাল উঠতে হবে। আজকে আমাদের লাস্ট ডে আগ্রাতে, আজকের দিনটাই আমরা পাবো আগ্রাতে ঘোরার জন্য। তার জন্য টাইম নষ্ট না করে একদম সকাল সকাল সবাই মিলে রেডি হয়ে বেরিয়ে গেছি। যখন আমি ভিডিওটা করছি তোমাদের কাছে তখন ওই 8:30-9টা মতো বাজে। একদম সকালে না বেরালে আমরা পুরোটা কভার করতে পারবো না। তো চলো আমরা আগে কি কি করব দেখতে থাকো। এই দেখো, সবার আগে আমরা চলে এসেছি বেরিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে, কারণ অনেকে তো একসাথে, প্রায় আমরা 16 জন মতো। এবার এত লোক একসাথে ব্রেকফাস্ট করতে তো টাইম লাগে, তার জন্য আমরা সবার আগে ব্রেকফাস্টটা করে নিলাম। আমরা একটু হেভি ব্রেকফাস্টই করেছিলাম, কারণ পরে আর খাওয়ার টাইম পাবো কি পাবো না সেই জন্য। তো দেখো এখনও খাবার আসেনি, আমরা সবাই খাবার অর্ডার দিয়ে বসে বসে আমরা গল্প করছিলাম আর খুব মজা করছিলাম। প্রচণ্ড মজা করছিলাম, প্রচণ্ড মজা হয়েছে আমাদের এই ট্যুরটাতে। এখনও আমাদের খাবার আসেনি, আসলে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। চলো, এই দেখো আমাদের খাবার চলে এসছে, আলুর পরোটা। আমরা আলুর পরোটা নিয়েছিলাম, আরও অনেকে অন্য রকম নিয়েছিল, যার যেটা ইচ্ছা সে সেটা খাচ্ছিল। ম্যাক্সিমাম অনেকেই আলুর পরোটা নিয়েছিল, আর আলুর পরোটাটা ব্রেকফাস্টে খেতে খুব ভালো লাগে। আর আলুর পরোটাটা কিন্তু প্রচণ্ড টেস্টি ছিল, দারুণ ছিল। এই আমার ছেলেরটা এসছে, আমাদেরটা তখনও পর্যন্ত আসেনি। ভালো করে দেখো আলুর পরোটা কি ইয়াম্মি লাগছে না দেখতে। চলো তাহলে আমরা এখান থেকে খেয়ে দিয়ে নিয়ে বেরাই, তারপরে আবার দেখাচ্ছি। এই দেখো আমরা চলে এসেছি এবার ফতেপুর সিক্রিতে। আর এখান থেকে মানে সিস্টেম আছে, যে টিকিট ফিকিট কাটবো, তুমি যদি গাইড নাও তো গাইড নিতে পারো। তো আমরা একটা গাইড নিয়েছিলাম। তো চলো ভেতরে গিয়ে তোমাদের তো অবশ্যই দেখাবো আমরা কি কি দেখলাম। আর এরপর ভেতরে গিয়ে যা যা ভিডিও করবো তোমরা আমার মুখে না, আমাদের যে গাইড ছিল তার মুখ থেকে তোমাদের সমস্তটা আমি শোনাবো। কারণ আমি মনে করি যে আমার থেকে বেশি গাইডের মুখ থেকে শুনলে তোমাদের আরও বেশি ভালো লাগবে জিনিসটা। ওনার যেহেতু নলেজটা অনেক 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 বেশি, তাই ওনার মুখ থেকেই পরবর্তী আমরা যা যা দেখবো সব তোমাদেরকে শোনাবো। তো চলো দেখতে থাকো। আগে তো প্রচুর ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাবো তোমাদের। এই আগেই বলেছিলাম আমার যেহেতু খুব ভালো লাগে, তোমাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। আর আরও ওনার মুখ থেকে শুনলে তোমাদের আরও 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 অনেক বেশি ভালো লাগবে। তো চলো, দেখছো আমরা গাড়ি করে কেমন যাচ্ছি, অনেকটা ভেতরে ছিল। আমার তো খুব ভালো লেগেছে জায়গাটা, তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তোমরাও জানিও কমেন্ট করে যে কেমন লাগলো। খুব সুন্দর ছিল জায়গাটা। আর মানে এই গাড়িটা করে যেতে বেশ অনেকটা টাইমও লেগেছিল আমাদের। চলো আগে আমরা যা যা দেখব অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। খুব মজা হয়েছে। আর এর ভেতরে আমাদের ঘুরতে অনেকটা টাইম লেগে গেছিলো, প্রায় এর ভেতরে 1.5 থেকে 2 ঘন্টা লেগে গেছিলো আমাদের পুরোটা ঘুরতে। এই যে ফাইনালি আমরা চলে এসেছি। আর এই যে ঢুকছি, এই যে উনি আমাদেরকে ডাকছে, সবাইকে এক জায়গায় দাঁড়াতে বলছে, কিছু বলবে বোধহয়। তো চলো উনি এবার যা যা বলবে আমরা তো শুনবই, তোমাদেরকে অবশ্যই শোনাবো। তোমাদের খুব 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 ভালো লাগবে। আর আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে অবশ্যই বলো তোমাদের কেমন লাগছে। দেখেছো ভেতরটা কত সুন্দর, দারুণ। सीकरी है। यहाँ पे दो जगह देखने के लिए, सीकरी और फतेहपुर। सीकरी रेजिडेंशियल प्लेस था और फतेहपुर रिलीजियस प्लेस। जिस जमाने में बादशाह अकबर यहाँ पे आए थे उस जमाने में फतेहपुर सीकरी ऐसा नहीं था। यहाँ पे अरावली रेंज की पहाड़ियाँ थी, उन पहाड़ियों में जंगल थे। उस जंगल में एक सूफी संत थे जिनका नाम था हजरत शेख सलीम चिश्ती। वो यहाँ पर ईश्वर की इबादत किया करते थे। बादशाह अकबर की 3 रानियाँ थी, पहली थी रुकैया बेगम, दूसरी जोधा और तीसरी मरियम। लेकिन किसी भी रानी से उनको कोई भी औलाद नहीं थी। उन्होंने कई जगह उनको दिखाया, जैसे वैद, हकीम, डॉक्टर्स, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। उसके बाद उन्होंने कई जगह जाके दुआ करी औलाद के लिए। जैसे कई बार वो अजमेर शरीफ गए, वहाँ पे जाके उन्होंने दुआ की, बट उनकी दुआ वहाँ पे कबूल नहीं हो पाई थी। उसके बाद वो ज्वाला देवी गए, जहाँ पर उन्होंने एक सोने का छत्र चढ़ाया था, जो कि आज भी वहाँ पे मौजूद है, लेकिन उनकी दुआ वहाँ पे भी कबूल नहीं हो पाई। सभी जगह से थक आकर वो वापस आए। जब 7वीं बार वो अजमेर शरीफ वहाँ पे गए तो वहाँ पे उनको सपना हुआ कि आप सीकरी की पहाड़ियों में जाइए, वहाँ पे जो सूफी संत रहते हैं उनके आशीर्वाद से आपको बेटा मिलेगा। अजमेर से फतेहपुर सीकरी बादशाह अकबर नंगे पैर चल के अपनी बेगम के साथ यहाँ तक आए और जो सूफी संत थे हजरत शेख सलीम चिश्ती, उनसे मिले और उनको अपनी समस्या बताई। जो सूफी संत थे वो ये देखकर काफ़ी खुश हुए कि सारे जहाँ का बादशाह नंगे पैर चल के मेरे दर पे आया, और उन्होंने खुश होकर उनको एक बेटे के लिए आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद यानी कि 1569 में बादशाह अकबर को एक बेटा मिला,
जिसका नाम उन्होंने हजरत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा था, शहजादे सलीम। सलीम जब बड़े हुए तो उनको शहंशाह जहांगीर के नाम से जाना गया, जहांगीर यानी जहां का बादशाह। जब बेटा मिला उनको यहाँ से, तो बेटे की खुशी में उन्होंने फतेहपुर सीकरी को अपना कैपिटल बनाने का फैसला किया। 1570 से लेकर 1586 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही फतेहपुर सीकरी, और इसी दौरान ये पूरा कंस्ट्रक्शन कराया गया था। लेकिन यहाँ पे पीने के पानी की शॉर्टेज थी। एक्चुअली में ये पूरा पहाड़ी एरिया था और राजस्थान के क्लोज था, तो यहाँ पे बारिश कम हुआ करती थी। जब लगातार कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई तो उनको दिक्कत हुई पानी की, और वो यहाँ से शिफ्ट होकर लाहौर चले गए, जो कि अब पाकिस्तान में। ये जो ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड आप देख रहे हैं, इसको दीवान आम कहा जाता है। दीवान आम इट्स मीन हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, या फिर दीवान आम एक पर्शियन भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है दीवान यानी दरबार, आम यानी जनता, यानी जनता दरबार। सामने देखिए एक चैम्बर बना हुआ है, वहाँ पे बादशाह अकबर अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठा करते थे, और ये जो ग्रास एरिया, यहाँ पे लोकल पब्लिक आया करते थे अपनी फरियाद और अपनी परेशानी लेकर। तो एक तरह से पब्लिक कोर्ट हुआ करता था। यहाँ पे जनता अपनी समस्याओं को लेकर आती थी और अपनी समस्याओं का समाधान मतलब बादशाह अकबर के द्वारा करवाती थी, जो कि पनिश करता था गिल्टी पर्सन को। जो व्यक्ति यहाँ पे दोषी होता था इस कोर्ट के अंदर, उसको हाथी के सामने डाल के मरवा दिया जाता था। ज़्यादातर केसेस में वो मौत की सजा ही दिया करती। ये देखिए ऊपर जो रूम्स बने हुए, इनसे सामियाने बांधे जाते थे, सामियाने लाइक अ टेंट, जिससे कि ये पूरा एरिया कवर किया जा सके बारिश और धूप से बचने के लिए। ओके, तो ये हो गया आपका दीवाने आम। इसके बाद हम चलेंगे दीवाने खास। ओके प्लीज। खास या फिर पार्लियामेंट हाउस उस जमाने का, या फिर जो ज्वेल हाउस उसको बोल सकते हैं। यहाँ पे बादशाह अकबर अपने नवरत्नों के साथ बैठकर प्राइवेट और इम्पोर्टेंट मैटर्स डिस्कस किया करते थे। अपने एम्पायर के जो सीक्रेट मैटर्स होते थे उनको यहीं पर डिस्कस किया करते थे, जैसे कि बीरबल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हम्माम, अब्दुल रहीम खान खाना, जो भी जो नवरत्न थे उनके साथ बैठकर प्राइवेट और इम्पोर्टेंट मैटर्स डिस्कस किया करते थे। आइए प्राइवेट मीटिंग हॉल, यहाँ पे बादशाह अकबर जो अपना मीटिंग्स करते थे वो यहीं पे करते थे, लेकिन नीचे बैठ के नहीं, ऊपर बैठ के किया करते थे। चारों साइड में जो बालकनी है इसमें बैठा करते थे, और बीच में इसके बीच में बादशाह अकबर, चारों साइड में मिनिस्टर। और ये जो एक स्टोन का बना हुआ है, सिंगल पीस स्टोन, इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है। 1582 में बादशाह अकबर ने एक अलग रिलीजन स्टार्ट किया था जिसका नाम था दीन इलाही, जो कि एक यूनिवर्सल धर्म था। उसमें सभी धर्मों के सिद्धांतों को मिलाकर बादशाह अकबर ने इसको शुरू किया था, और वो चाहते थे कि सभी लोग इस धर्म को फॉलो करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया था। उसके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, केवल 17 फॉलोअर्स थे बादशाह के ज़माने में, इसीलिए वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया था। ये जो पिलर है ये सिंबल है दीन इलाही धर्म का। इसमें सभी धर्मों के डिज़ाइन बादशाह अकबर ने बनवाए थे, जैसे अनेकता में एकता जो बेसिक सिद्धांत था धर्म का, उसको यहाँ पे तारजमा उन्होंने कराया था। देखिए ऊपर का जो डिज़ाइन है ये एक लोटस फ्लावर बना हुआ है, जो कि सिंबल होता है ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा गॉड और क्रिएटर। नीचे देखिए एग्जैक्ट पर्शियन धर्म का डिज़ाइन। तो देखिए आर्च बना हुआ है, आर्च बिलोंग करता है मुस्लिम धर्म से। इसके नीचे देखिए क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस क्रिश्चियन धर्म से लिया गया है, और ये जो क्रॉस फ्लावर्स हैं ये बौद्धिज्म से लिए गए हैं। बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य शक्ति होते हैं उनको ये दर्शाते हैं। इसके नीचे वाला जो डिज़ाइन है ये जैन टेम्पल से लिया गया है, जैनिज्म का डिज़ाइन है। मैंने बताया ना अनेकता में एकता, क्योंकि बादशाह अकबर सेकुलर थे और सभी धर्मों को मानने वाले थे। वो किसी एक पार्टिकुलर धर्म को नहीं मानते, सबको रेस्पेक्ट करते थे, और उनके शासन में कई हिंदू रेस्पेक्टेबल पोजीशन पर हुआ करते थे, जैसे कि मानसिंह, टोडरमल, उनकी शासन एक पोजीशन यानी वो अकाउंटेंट उनके आधार थे, समझे? तो ये मतलब वो किसी पार्टिकुलर रिलीजन को नहीं मानते थे, सभी लोगों को रेस्पेक्ट करते थे और सभी धर्मों को मानते थे। ओके, ठीक है। 1 2 3 4 5 मंजिला इमारत है, इसलिए इसको पंचमहल कहा जाता है। बादशाह के जमाने में इसको विंड पैलेस या फिर हवा महल के नाम से जाना जाता था। बादशाह पर सबसे टॉप टू बैठकर अपनी बेगमों के साथ ये हवा खाया, यहाँ पे हवा खाया करते थे।
उस जमाने में कूलर, पंखा, एसी ये सब नहीं हुआ करते थे। तो ये पूरा ओपन स्ट्रक्चर है और पिलर सपोर्टेड है। ओनली कॉलम्स यूज, देखिए कोई भी दीवार आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसका मतलब कई स्टेज के जैसे उनकी हिंदू वाइफ ऊपर से करवा चौथ का चांद देखती थी और उनकी जो मुस्लिम वाइफ थी वो ईद का चांद देखा करती थी। इसके बगल में देखेंगे डबल स्टोरी जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये रॉयल फैमिली के जो चिल्ड्रंस थे उनके लिए स्कूल हुआ करता था, स्कूल लाइक मदरसा। नीचे वाली जो बिल्डिंग है ये एक तरह से स्कूल था और ऊपर स्टेज था। ओके साहब, खुश रहो। तो ये एक तरह से मतलब रॉयल फैमिली के जो चिल्ड्रंस थे उनके लिए स्कूल हुआ करता था। ओके, इधर आइए आगे। या फिर लाइक लूडो, देखिए पूरा गेम है, ऐसे करके और ऐसे करके क्रॉसेस। अच्छा, एগুলো देखिए एक सीट बनी हुई है, देखिएगा डिफरेंट तरह की ड्रेसेस पहनकर खड़ी होती तो अकॉर्डिंग यानी कि मतलब जो से दूसरे में नंबर 5 जो नंबर 1 गोटियाँ हुआ करते थे। जो लड़कियां होती थी वो गोटियां होती थी, तो बादशाह अकबर बीच में बैठ के बेगमों के साथ में ये गेम खेला करते थे। जो पासा होता था उस नंबर के हिसाब से वो चेंज किया करती थी पोजीशन। अंडरस्टैंड? না রাজারানী মাঝখানে বসতো, বসে এখানে মেয়েরা দাঁড়াতো এবং চাল দিত, মেয়েরা এখানে तो देखिए ये जो तालाब आपको दिख रहा है इसको अनूप तालाब कहा कहते हैं। अनूप यानी कि अनोखा या फिर अद्भुत। बीच में एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ पे संगीत सम्राट तानसेन बैठते थे। तानसेन ही वॉज ग्रेट इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन और सिंगर। तो तानसेन बीच में बैठ के संगीत गाते थे। सामने जो बिल्डिंग है वो सेकंड फ्लोर जो दिख रहा है वहाँ पे बादशाह अकबर अपनी बेगमों के साथ बैठकर ये संगीत सुना करते थे। और ये जो कौन है ना, इसके चारों साइड में गर्ल्स खड़े होकर उनके संगीत पे डांस किया करती थी। ये जो कोर्टयार्ड है यहाँ पे उनके जो मिनिस्टर्स ऑफिसर हुआ करते थे वो सब बैठा करते थे। तो एवरी इवनिंग वो बादशाह अकबर इस तरह का प्रोग्राम वो एंजॉय किया करते थे। यहीं पे वो दीपक राग और मेघ मल्हार राग गाया करते थे। जब वो दीपक राग गाते थे तो दीपक ऑटोमेटिक जल जाया करते थे। ऐसा लगता था कि जैसे पानी में दीपक जल गए। और जब वो मेघ मल्हार राग गाते थे तो बारिश हो जाती। इतने ग्रेट म्यूजिशियन थे। और मैंने बताया ना एक मूवी थी परदेश, जिसका गाना था नहीं होना था जो भी बज रहा था वो गाना यहीं पे पिक्चराइज किया गया है। अच्छा, वो गाना बीच में बैठ के ये वो गाना पिक्चराइज किया गया। राजस्थानी पोशाक में जो गाना हुआ है वो गाना यहीं पे हुआ है, परदेश मूवी का। ओके, तो देखिए बहुत सारी मूवी हैं जिनका मतलब यहाँ पे शूटिंग हुआ है, लेकिन लास्ट मूवी थी वो परदेश ही थी। क्योंकि इसमें 5 स्टोरी पैलेस, पंचमहल भी दिखाया था और ये जगह भी दिखाई थी। मतलब बहुत सारी शूटिंग थी यहाँ की उसमें। परदेश, हाँ परदेश। शाहरुख खान आपने फोन रुकैया बेगम, कौन सा वाला? ये छोटा वाला। हेलो हेलो, हाँ आरिफ, बिल्डिंग आ गया पैलेस सर, रुकैया बेगम का पैलेस। रुकैया बेगम टर्की की रहने वाली थी, इसीलिए उनको टर्की सुल्ताना भी कहा जाता है। ये जो पैलेस है छोटा तो है ही लेकिन खूबसूरत पैलेस है। और यहाँ पे वो रुकैया बेगम रहती थी। और इसके बाद हम अभी 2 क्वींस के पैलेस और देखेंगे, जैसे कि मरियम और जोधा का पैलेस। जोधा का पैलेस इस पूरे कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा पैलेस है। सबसे बड़ा और सबसे वैभवशाली जो पैलेस है वो जोधाबाई का पैलेस है। तो इसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे हम जोधाबाई का पैलेस। सो प्लीज कम, थोड़ा कवर टुक 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 करके। उस जमाने में मशीनें नहीं थी, ऑल वर्क डन बाय हैंड बिकॉज नो मशीन दैट टाइम। तो मशीनों का वर्क नहीं, हाथ का वर्क है। देखिए जो बॉक्सेस लगे हुए इनमें उस जमाने में ग्लासेस या फिर शीशे लगे हुए थे। अच्छा, समझ रहे? और छोटी छोटी जगहों पे डायमंड लगे हुए थे। एक लग्जरी बेडरूम हुआ करता था उनका फर्स्ट वाइफ का, और अंदाज था उनका। ओके, इसके बाद हम देखेंगे जोधाबाई का पैलेस। इस पूरे कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा पैलेस जो है जोधाबाई का पैलेस था, क्योंकि उनकी अरे टाक्कर আসো না, এখনো জল ভরছে নাকি? আরে আয়, सुनने का मतलब इंटरेस्ट है नहीं। महारानी जोधाबाई का पैलेस है।
इस बड़े पैलेस में महारानी जोधाबाई के लिए 2 बेडरूम बादशाह अकबर ने बनवाए थे। सामने जो देख रहे हैं नीली नीली छत वाला, ये उनका समर बेडरूम है। इसके अपोजिट वाला ये विंटर है। दोनों देखने में सेम है, दोनों देखने में सेम है, जैसा वो ऐसा ही है, सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये जो बेडरूम है इसके पीछे दीवारें नहीं थी, पीछे जालियाँ लगी हुई है, पत्थर की जालियाँ, स्क्रीन्स। देखिए यहाँ से देखेंगे तो जालियाँ आपको दिख जाएंगी, हल्की हल्की सी, थोड़ा सा उधर से जालियाँ हैं, तो जालियों से हवा आती थी, ठंडी हवा आती थी, जिससे ये ठंडा रहता था। वैसे भी एक झील थी पीछे, इसके पीछे एक झील हुआ करती थी, वाटर लैक, अब नहीं है, वहाँ पे खेती होती है। तो उस झील से ठंडी हवाएं जब आती थी इस बेडरूम के अंदर, तो ये पूरा बेडरूम ठंडा रहता था। इसके अपोजिट आप देखेंगे ये पूरा पीछे से पैक्ड है, और ये साउथ साइड में होने के कारण सनलाइट डायरेक्टली इसकी दीवारों में पड़ती है, जिससे ये गर्म रहता था, और वो यहाँ पे सर्दियों में आराम किया करते थे। ये जो डॉम देख रहे हैं ऊपर, डॉम या फिर जो छतरी, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुआ करते थे। सिक्योरिटी गार्ड नो मेल नो फीमेल, वो ट्रांसजेंडर हुआ करते थे। अच्छा, महारानी जोधाबाई यहाँ पे 51 दासियों के साथ में रहती थी, जो उनके पिताजी ने उनको दहेज में दी थी। ये जो छोटे छोटे स्मॉल क्वार्टर आप चारों साइड में देख रहे हैं, इनमें उनकी दासियां रहती थी, हिंदू मेड सर्वेंट, जो कि उनके पिताजी के यहाँ से उनको मिली थी। बीच में देखिए तुलसी का पौधा लगा हुआ था, वहाँ पे पॉन्ड बना हुआ है, उस पॉन्ड में तुलसी का पौधा लगा रहता था, और उस पर वो जल चढ़ाया करती थी और पूजा करती थी। बिल्कुल देखिए इधर सामने जो बिल्डिंग है, ये हिंदू टेम्पल था, जोधा का टेम्पल, जहाँ पे वो राधा और कृष्ण की पूजा किया करती थी। लेकिन मूर्तियाँ अब वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो मूर्तियाँ गोल्ड की थी। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो वो सारी चीज़ें निकाल के ले गए थे। तो वैसे तो टेम्पल है, बट वहाँ पे मूर्तियाँ नहीं है। तो देखिए अभी आप सीकरी विजिट कर रहे हैं, ये सीकरी का लास्ट पॉइंट था। उसके बाद हम लोग चलेंगे फतेहपुर। तो यहाँ पे आपके पास 5 या 7 मिनट रहेंगी, आप लोग फोटो खींच सकते हैं। एक राउंड लेना चाहे एक राउंड ले लीजिए, कमरों के अंदर मत जाइएगा, सीधा टेंपल पे जाइए। टेंपल देखने के बाद ना सीधा मैं वेट वहाँ पे कर रहा हूँ, वहाँ पे मिलूंगा। देखिए फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर चलेंगे। इसके बाद में फतेहपुर एक रिलीजियस पार्ट है, वहाँ पे आप देखोगे बुलंद दरवाज़ा, हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, शाही दरवाज़ा, शाही मस्जिद, शाही जामा मस्जिद, ये सारी चीज़ें आप विजिट करोगे, और वो एक रिलीजियस पार्ट है। तो वहाँ पे इवन जनरली बहुत से लोग होते हैं जो कि अनऑथराइज्ड लोग होते हैं, या फिर जो कि मतलब असामाजिक तत्व होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा, जो सेल्समैन, छोटे छोटे सेल्समैन होते हैं जनरली। दीदी आपसे भी कह रहा हूँ, आप सभी से कह रहा हूँ, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वो एक बार आप ध्यान देंगे तो वो पीछे पड़ जाएंगे। उससे आपका नुकसान ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका पैसा भी वेस्ट होगा। ठीक है, तो उनकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा। देखिए वो एक रिलीजियस पार्ट है, वहाँ पे दुनिया के हर कोने से, हर धर्म के लोग आज भी आते हैं, क्योंकि वो जगह है जहाँ पे बादशाह अकबर को बेटा मिला था। उनके गुरु की दरगाह है, कैसे हो सकती है, गुरुवाड़ी बोलते हैं उसको। तो वो वहाँ पे सलीम चिश्ती साहब की दरगाह है, वहाँ पे मैंने बताया दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं, और वहाँ पे मन्नतें करते हैं। मन्नत का धागा वहाँ पे बांधा जाता है। एक धागे से 3 मन्नतें आप कर सकते हैं, मन्नत किसी भी तरह की कर सकते हैं। कोई डॉक्टर बनने के लिए, कोई इंजीनियर बनने के लिए, कोई बच्चों की सलामती के लिए, कोई बिजनेस के लिए, वो जैसे इसकी विश है वो विश कर सकते हैं। विश किसी को बतानी नहीं होती। एक धागे से 3 विश हो जाते हैं। एक नोट बांधेंगे, एक विश करेंगे, दूसरी नोट बांधेंगे, दूसरी विश करेंगे, तीसरी नोट बांधेंगे, तीसरी विश करेंगे। हस्बैंड वाइफ है, 3 आप करेंगे, 3 आप करेंगे, और दोनों डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ किसी को बताना नहीं होता। अनमैरिड जो होता है उसको किसी को नहीं बताना। जब कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। आप वहीं पे बाबा जी के नाम से 2 गरीबों को खाना खिला दीजिए अपने घर पे, पेट भर के। आपके कुछ अगर आप आना चाहते हैं तो ग्वालियर में, तो वहाँ पे जो सूफी ट्रेडिशन है उसी को लोग फॉलो करते हैं आज भी। वहाँ पे एक कपड़े का चादर चढ़ाते हैं, एक चादर लेते हैं और फूल लेते हैं, चादर चढ़ाते हैं, उस पर फूल डालते हैं, थोड़ा सा टच करके मन्नत का धागा जालियों से, यही डोनेशन होता है, यही ट्रेडिशन होता है। वहाँ 7 बच्चों का स्कूल है, उसके पीछे पहले पूरे कोर्टयार्ड में चलता था, मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी एक साइड में चलता है। वहाँ पे लगभग 15 बच्चे आज भी पढ़ते हैं, गरीब और अनाथ बच्चे। तो जो चीज़ें आप जैसे डोनेट करते हैं, फूल, चादर, जो भी चीज़ें आप चढ़ाते हैं, वो चीज़ें गरीबों में बांट दी जाती हैं, और उनकी हेल्प होती है, और आपकी विश कम होती है। तो यानी कि आपका पैसा अच्छे काम में जाता है, और आपकी विश में पूरी होती है। तो देखिए आप लोग चलेंगे, मैं वहाँ पर भी बताऊँगा आपको। पहले आप लोग ऐसा करिए, अपना ये
তো দেখো আমরা চলে এসেছি হজরত শেখ সালিম চিশতির দরগাতে। তোমরা তো শুনলেই ওনার মুখে যে এখানে সবার উইশ পূরণ হয়, এখান থেকে কেউ খালি হাতে ফিরে যায় না। তো আমরা এই জায়গাটায় এসে আমাদের তো ভীষণ ভালো লেগেছে, ভীষণ। তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে आप কিন্তু फोटो অবশ্যই चाहे কমেন্ট फोटो করে खींच लीजिएगा और घूमना तो घूम पहाड़ है जहाँ पे बादशाह अकबर के जो गुरु थे वो यहाँ पे रहा करते थे। तो यहाँ पे दुनिया के हर कोने से हर धर्म के लोग आज भी आते हैं। देखिए जिस दरवाजे से आप आए हैं उस दरवाजे को रॉयल गेट कहा जाता है। रॉयल गेट या फिर बादशाही दरवाज़ा वो इंट्रेंस था रॉयल फैमिली के लिए और एक तरह से वीआईपी गेट हुआ करता था। उससे बादशाह और उनकी फैमिली के लोग अंदर आते थे प्रे करने के लिए जब उनको आना होता था। दूसरी साइड पर देखिए आपके लैंड कराया था। जब गुजरात विजय वो करके आए थे तब उन्होंने इसको बनवाया था और इसको विक्ट्री गेट भी कहा जाता है, विजय गेट। और इसकी हाइट 176 फीट है, 90 फीट चौड़ाई है। अगर देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर से 176 फीट इसकी 90 फीट चौड़ाई है, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। ये देखिए सामने ये शाही मॉस्क है, यानी कि शाही जामा मस्जिद, जहाँ पे 5 वक्त की नमाजें आज भी ये लोग अदा करते हैं। यहाँ की जो कम्युनिटी है वो आज भी यहाँ पे नमाजें अदा करती है। 5 टाइम प्रे एवरी डे। मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो ये है हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। ये वही जगह है जिस जगह पे सूफी संत साहब की झोंपड़ी हुआ करती थी। उस झोंपड़ी में के आसपास जंगल था, बहुत घना जंगल, और वो यहाँ पे रहा करते थे। जब बादशाह अकबर यहाँ पे आए, उनको इनके आशीर्वाद से उनको जब बेटा मिला तो बेटे की खुशी में उन्होंने फतेहपुर सीकरी को अपना कैपिटल बनाने का फैसला किया और अपने लिए रिलीजियस पार्ट और अपने गुरु के लिए ये एक धार्मिक जगह बनाई थी। तो यहाँ पे दुनिया के हर कोने से हर धर्म के लोग आज भी यहाँ पे आते हैं और लोग विश करने के लिए आते हैं, दुआएं करने के लिए। यहाँ पे मन्नत का धागा बांधा जाता है। जितने भी सेलिब्रिटी बड़े बड़े लोग हैं वो अपनी सफलता के लिए यहाँ पे आ चुके हैं और आते रहते हैं। तो देखिए दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं मन्नत करने के लिए। यहाँ पे एक धागे से 3 मन्नतें आप कर सकते हैं। मन्नत किसी भी तरह की कर सकते हैं, जो आपके मन में हो वो मन्नत कर सकते हैं। तो बोल दिया पहले। তো ফাইনালি আমরা চলে এসেছি তাজমহলে। এত দিন ধরে দীর্ঘ অপেক্ষার পর আমরা ফাইনালি এসে গেছি তাজমহলে। আর জানো তো বন্ধুরা, আমার অনেক 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 দিনের ইচ্ছা ছিল আমি তাজমহল দেখতে যাব। অভিজিৎকে বলেছিলাম, যখন আমাদের সামান্য দীঘা যাওয়ারও মানে ক্ষমতা ছিল না, তখন থেকেই আমি স্বপ্ন দেখতাম আমি তাজমহল দেখতে যাব। আর কিছু দেখি আর না দেখি, তাজমহল দেখব। তো যাই হোক, চলো ফাইনালি আমি একটু ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম তাজমহলে এসে আর কি। তো ফাইনালি আমি তাজমহল দেখতে পারলাম। আর তোমাদেরকে কি বলবো বন্ধুরা, যে আমরা ছবিতে ভিডিওতে যা দেখি তাজমহল সেটা কিছু না, কিছু না। সামনে থেকে যতক্ষণ না দেখবে বুঝতে পারবে না যে এটা কতটা সুন্দর। আর আমি তো ভীষণ এক্সাইটেড, ভীষণ।
আর আমি তোমাদেরকে আগেই বলেছিলাম যে আমার একটু হিস্টোরিক্যাল প্লেস বেশি ভালো লাগে, যেহেতু আমার ফেভারিট সাবজেক্ট হিস্ট্রি ছিল। আর তাজমহলের ব্যাপারটা তো একটু সবার থেকে আলাদাই, তাই জন্য আমার স্বপ্ন ছিল তাজমহল দেখতে যাব। ফাইনালি আমার স্বপ্ন পূরণ হলো বলতে পারো। আর তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে আমি অভিজিতের সাথে ছবি তুলবো, এটা আমার অনেক 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 দিনের স্বপ্ন ছিল। আর আমরা অনেক ছবিও তুলেছি, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যতটা সম্ভব। ক্যামেরায় কিচ্ছু ধরা পড়বে না, সামনে থেকে দেখে আমি যা বুঝলাম আর আমি এতদিন ছবিতে যা দেখেছি সেই এক্সপিরিয়েন্সই তোমাদেরকে বলছি। আমি তোমাদেরকে যেটা ক্যামেরায় দেখাতে পারছি সেটা কিছু না, যতক্ষণ না সামনে গিয়ে দাঁড়াবে ততক্ষণ বুঝতে পারবে না এর বিউটিটা কি। অপূর্ব অপূর্ব, সেটা তোমাদেরকে আমি বলে বোঝাতে পারবো না, এত সুন্দর এত সুন্দর। তো আমরা তাজমহলে গিয়ে তো চারিদিক ঘুরে দেখে প্রচুর ফটো তুলেছি, দারুণ 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 ব্যাপার। আর আমি এই ভিডিওতে থাম্বনেলে কিন্তু আমার আর অভিজিতের তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে যে ছবিটা তুলেছি সেটাই রাখবো, ঠিক করেছি, অনেক দিন আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম। দেখো, তোমাদের যতটা সম্ভব আমি দেখানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু আমি চোখে দেখার পর ওই যে বললাম সামনে থেকে কিছুই, মানে সামনে থেকে যেটা দেখেছি সেটা ছবিতে আমি তোমাদেরকে তুলে ধরতে পারবো না। তাও যতটা সম্ভব আমি তো ভিডিও করবই। এবার দেখো আমরা তার ওপরে উঠে এসেছি, ভেতরে যাচ্ছি। ভেতরে জানি না ভিডিও অ্যালাউ করবে কি না, তো দেখা যাক। করলে তো আমি অবশ্যই, এই দেখো অ্যালাউ করলো না ভিডিও। আর এই দেখো এখানে না আমি একটু রিলস বানাচ্ছিলাম, আমাকে বানাতে দিল না, বললো না এখানে এরকমভাবে রিলস বানানো যাবে না। তো যাই হোক, আমরা ভেতরটা দেখে বাইরে এসে এবার ফটোশ্যুট করছি। দেখো শুধু মানে এটার যে হোয়াইটটা না, মানে এতটাই হোয়াইট যে আমরা ছবি তুলতে পারছিলাম না, মানে ছবি রিফ্লেক্ট করছিল, এতটা হোয়াইট। দেখো অপূর্ব অপূর্ব, আমার তো মানে আনন্দের সীমা নেই, কি বলবো তোমাদেরকে। বন্ধু, তোমরা যারা যারা দেখোনি তারা অবশ্যই একবার গিয়ে তাজমহল দেখে এসো। হ্যালো এভরিওয়ান, আমরা সবাই তাজমহল দেখে বা ইয়েতে এসে তোমার কি বলে, ভুলেই যাচ্ছি, হোটেলে এসে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি। এবার বেরাচ্ছি এখন আমরা খেতে। বাচ্চারা সবাই খাবে, ওদের খাবারটা খাইয়ে আমরা আমাদেরটা প্যাকিং করে নিয়ে আসবো। আর এখানে কাছেই একটা মার্কেট আছে, ওখানে যাব আমরা একটু দেখতে। লিফট এসে গেছে, লিফটে উঠবো, নিচে যাব, এই যে লিফট। মার্কেটটায় গিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো। আর না, একটু আগে আমরা আসার সময় একটা মার্কেটে গেছিলাম, তো ওখানে আমি সব কিছু দেখাতে পারিনি, কারণ তখন আমার ফোনটা মানে সুইচ অফ হয়ে গেছিলো। এত ছবি তুলেছি, এত ভিডিও করেছি সারাদিনে, এত আজকে ভালো ভালো জিনিস দেখেছি, খুব ভালো হয়েছে। ভিডিও করতে করতে পুরো চার্জ শেষ। তাজমহলে যাবো বলে কিছুটা চার্জ বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, তারপরে সব শেষ হয়ে গেছে, তো ওই জন্য ভিডিও করতে পারি। তো এখন যদি পারি তো করবো। আর বাচ্চারা খাবে, চলো তোমাদেরকেও নিয়ে যাবো। তো দেখো আমরা ফাইনালি চলে এসেছি এই রেস্টুরেন্টে ডিনার করতে। তোমাদেরকে বললামই যে আমরা এখন ডিনার করতে যাচ্ছি। তো আমরা করব না ডিনার, বাচ্চারা করবে, আর আমাদের সবার জন্য খাবার নিয়ে নেবো। এই দেখো, এটার নাম হচ্ছে দিল্লি দরবার। তো এটা নাকি এখানকার খুব ভালো রেস্টুরেন্ট। মানে আমাদের যারা মানে ড্রাইভার ছিল উনি আর কি বললেন, তো সেই ওনাদের কথা শুনেই এলাম এখানে। আর সত্যি এখানকার খাবার খুব টেস্টি ছিল। আমি পরে যেহেতু ভয়েস দিচ্ছি তাই বলতে পারছি। আর এই দেখো আমাদের ইয়াম্মি ডিনার চলে এসছে, চিকেন কষা, স্যালাড আর নান। দারুণ ছিল ডিনারটা, বাচ্চারা খেয়ে নিল। আর বাড়িতে আরও অনেকে ছিল আমাদের সাথে, যারা যারা এসেছে তোমরা দেখলেই। তো ওদের জন্য আর আমাদের জন্য সবার জন্য খাবার প্যাকিং করে নিয়ে নিয়েছিলাম। তো ওদের যেহেতু খিদে পেয়ে গেছিলো তাই ওদেরকে আগে খাইয়ে দিলাম। বাচ্চারা খেয়ে নেওয়া মানেই আমাদের অর্ধেকটা পেট ভরে যায়। তো ওরা ভালো করে খেলেই আমাদের পেট মন সবই ভরে যায়। তো যাই হোক, ওরা খুব মজা করে খাবারটা খাচ্ছিল, আর খাবারটা সত্যিই খুব ভালো ছিল। আমরাও পরে যখন খেয়েছিলাম আমাদেরটা একটু ঠান্ডা হয়ে গেছিলো, কিন্তু ভালো ছিল। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। সকাল সকাল এখন বাজে 7টাও বাজেনি, 7টা বাজতে 10। স্নান টান কমপ্লিট হয়ে গেছে, রেডি হয়ে গেছি। আজকে আমাদের ফেরার ট্রেন 9:50 ট্রেন। তো মোটামুটি 7:30টার মধ্যে বেরিয়ে যাব আমরা স্টেশনে যাওয়ার জন্য। চা পেলে না চা?
ও অভিজিৎ সকাল সকাল চা খেতে গেছিলো। আমার স্নান হয়ে গেছে, ছেলে স্নান করতে গেছে, অভিজিৎ স্নানটা করলে আমরা সবাই বেরিয়ে যাব। তো ভালোই ঘুরলাম, কিন্তু প্রচণ্ড টায়ার্ড। ট্রেনে গিয়ে শুধু যতক্ষণ ট্রেন জার্নি আছে খাবো আর ঘুমোবো, কারণ বাড়িতে গিয়েই লক্ষ্মী পুজো আছে, লক্ষ্মী পুজোটা করে নেবো, তারপরে রেস্ট নেবো, কারণ একবার শুয়ে পড়লে আর শরীর আর চলবে না। তো ওই ব্লগটা তো সেই দিন থেকে চলছে, পরশু দিন থেকে চলছে ব্লগটা। তো চলো ব্লগটা আর বড় করব না। এমনিতেও কালকে আমরা অনেক জায়গায় ঘুরতে গেছিলাম, সেগুলো সব প্রচুর ভিডিও করেছি, ব্লগটা অনেক বড় হয়ে গেছে। তো এই ব্লগটা আমি এখানে এন্ড করে দিলাম, আবার ট্রেনে গিয়ে নতুন ব্লগ স্টার্ট করব। তো চলো টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আমার ব্লগে যদি কিছু ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার কমেন্ট সাথে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করো। আর খুব 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 তাড়াতাড়ি আসতে চলেছে তোমাদের দারুণ দারুণ ভিডিও, বৃন্দাবন, মথুরা, দিল্লি, আগ্রা। তো আমি এখানে একদম এডিট করার টাইমই পাইনি, এডিট করার টাইম তো দূরের কথা, আমি মানে ভালো করে শোয়ারও টাইম পাইনি। আমরা কেউ রাত্রিবেলায় শুচ্ছি, সকালবেলা আবার 6:30 7টার মধ্যে বেরিয়ে যাচ্ছি, আবার রাতে ফিরছি, খাচ্ছি, ঘুমিয়ে পড়ছি। এডিট করার কোনো টাইমই পাইনি, বাড়িতে গিয়ে ভালো করে ধীরে সুস্থে বসে এডিট করে তোমাদেরকে পোস্ট করব। তো চলো টাটা, দেখা হচ্ছে আবার নতুন ব্লগের সাথে, বাই।